Welcome back to another episode, guys. This is your host, Dr. Smita Manas Singh, also known as Dr. Akal Ke Ande. I would go with my channel name, Dr. Akal Ke Ande. This is the same as my Instagram name. You can search it out if you need. So today we are going to be discussing the plan for FMG December session 2024. I have always advocated about this thing that should we study 19 subjects, because 19 subjects are very heavy to grasp and contain in itself, be it whatever exam. Is the exam about 19 subjects? No, I don't think so. What I feel is exam is about 300 topics, 300 questions, 300 topics, and these topics, 90% of these topics are like repeated topics. Every year one question comes or the other for from this topic. So what you need to know is, what you need to learn is how to differentiate 300 topics out of these 19 subjects, so it doesn't burden you too much. You can study too much. I have seen a lot of people who were good students, who were good people, hardworking people. They studied a lot but still they scored less, because 19 subject mein, if you go too deep in some of the subjects or some of the topics, they might not be that important how much ever you think. So basically the exam is a clearance exam. You are not appearing for a NEET PG or a USMLE or stuff like that. You are basically appearing for a license exam. Later on you can build upon it. So this is like your broader base which you need to keep concise so you don't mess up on the day, right? So I always advocated about 300 topics over 19 subjects. Don't start preparing your FMG journey thinking that it's 19 subjects. It's not. It's 300 topics. What I suggest, the next thing is, this video is not going to be very long. This video is going to be very short, because I don't want to waste anyone's time, and I don't want to repeat the same thing everyone is saying. So I'm keeping it concise and I'm keeping it fresh. जो भी मेरे को लग रहा है is new thing you should keep in mind, that is the one you should. So the most important thing which I cannot leave out of this video is integrated approach. रट्टा मारने से नहीं होगा, because the question, if the question changes a little bit, आगे से पीछे कैसे भी थोड़ा भी twist कर दिया, then you will be stuck on it. So conceptual approach is definitely important, क्योंकि 2020 के बाद, 2021 के बाद the exam has changed its pattern and it's no more one-liner kind of questions, more clinically based, more concept based. So you have to prepare it like as that only, कि हाँ integrated approach लेके चलनी है, ठीक है. I always advocate as a biology student from the very beginning, images over words. One image can give you 1,000 words. So wherever you think, जैसे डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ना है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो डाउन सिंड्रोम का ऐसे रट्टा लगाने की क्या फीचर्स होता है. बेटर देन दैट यू हैव द इमेज इन योर laptops or phones or whatever saved, and then you see the picture and tell कि क्या features होते हैं, है ना. So a image can tell you 1,000 words, because ये revise करने में आपको easy होगा. 1,000 words आपको revise करने में मुश्किल होगा, और image का जो recollection है, like exam में बैठ के जो image आपको ज़्यादा ध्यान रहेगी, words आपको इतने नहीं याद आएंगे क्योंकि आपने बहुत words पढ़े होंगे तब तक, ठीक है. नेक्स्ट, आई प्रेफर, लोग कहते हैं PYQ लगाओ, PYQ लगाओ, PYQ लगाओ. PYQ लगाओ, दैट इज़ गुड, बट ब्लाइंडली मत लगाओ. PYQ ब्लाइंडली लगा के ना कुछ फ़ायदा नहीं होना है. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ PYT, प्रीवियस ईयर टॉपिक. जब आप PYQ लगाओगे ना, तो आप ये देखो कि ये कौन से टॉपिक बार बार हैं जो रिपीट हो रहे हैं एक ही सब्जेक्ट में. उन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है. कुछ भी करके एक सब्जेक्ट छोड़ दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो PYT टॉपिक नहीं छूटना चाहिए. सपोज़ कोई एक सब्जेक्ट आपने लिया, जैसे मान लो FMT, मान लो आपको पसंद नहीं है, फोरेंसिक पसंद नहीं है, या साइकेट्री पसंद नहीं है, कुछ भी. तो अगर साइकेट्री नहीं भी पसंद है ना, फिर भी कैपग्रास और फ्रेगोली में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये 200 बार पूछ चुके हैं और दोबारा पूछते हैं हर 2 एग्ज़ाम के बाद, हर एक एग्ज़ाम के बाद पूछते हैं. तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं. तो डोंट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मे नॉट रिपीट, बट प्रीवियस ईयर टॉपिक्स डू. ये एक्चुअली सब एग्ज़ाम के लिए ही लागू होता है, ओके. द नेक्स्ट आई वुड से इज़ टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, तो करेक्ट आंसर निकाल, आप भले ही करेक्ट आंसर निकाल रहे हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो आप,
तो जो बाद के क्वेश्चन है जो मे बी वन लाइनर ही हैं लेकिन ईजी हैं, फटफट से लग जाएंगे, मे बी आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ। बहुत बार ऐसे होता है लोग कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सो यू नीड टू चेक कि तुम कितने टाइम में सवाल लगा रहे हो, एंड इट शुड बी क्विक। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करेक्ट आंसर एंड क्विक आंसर। क्विक आंसर के चक्कर में गलत आंसर नहीं करना है। सो इट शुड बी अ हैबिट कि क्विक आंसर करना है मगर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्विकनेस के चक्कर में एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन, नॉट एन एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन, इस तरह के जो लैंग्वेज बेस्ड जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती है ना, जो हम मिस आउट कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में, इन्हें मिस आउट नहीं करनी है। ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली सब आपको यही बोलेंगे, इज़ योर रिविजन प्लान। 2 से 3 रिविजन तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, बाकी उससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो वो आपकी श्रद्धा है। बट वो रिवीजन प्लान में क्या इंक्लूड होना चाहिए, दैट आई विल गिव यू द बुलेट पॉइंट्स जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सपोज़ आपका मोस्ट डिसलाइक सब्जेक्ट है कोई, जैसे मेरा माइक्रो था, ठीक है। तो एफएमजी ऐसा एग्ज़ाम है ना कि ये क्लियरिंग एग्ज़ाम है। मैंने माइक्रो नहीं पढ़ा, खोला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो एक सब्जेक्ट को आप ये मतलब लिबर्टी ले सकते हो कि यार मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं माइक्रो छोड़ देता हूँ। तो एक सब्जेक्ट के साथ आप ऐसा कर सकते हो आउट ऑफ 19। वो आपका स्कोर भले ही कम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पास ही ना हो सकता है आप 220 ना स्कोर करो, 200 प्लस स्कोर ना करो, लेकिन 150 to 180 तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो एक सब्जेक्ट छोड़ के भी। तो डिसाइड अकॉर्डिंगली। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ही कठिन लग रहा है तो डोंट लाइक पैनिक ओवर इट कि नहीं करना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह। आई वुड सजेस्ट कि छोड़ दो, बस एक सब्जेक्ट होना चाहिए वो, है ना। और वो इन सब्जेक्ट्स में से नहीं होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट्स में से नहीं होना चाहिए। मेजर सब्जेक्ट क्या है अपने, पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन और ओबीजी, इसमें से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब में ज़्यादा सवाल आते हैं। इसको छोड़ दिया तो बहुत बड़ा चंक चला जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इनमें से नहीं होना चाहिए। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक सब्जेक्ट अगर आपको बहुत ही बुरा लगता है तो छोड़ दो। मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, अब मोस्ट लाइक सब्जेक्ट मेरा क्या होता था, एफएमटी होता था उस टाइम पे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। तो एफएमटी मेरे को अच्छे से आती थी, अभी भी एफएमटी अच्छे से आती है। लेकिन बहुत लोगों का कोई और सब्जेक्ट होता है। तो मोस्ट लाइक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है। जो पसंद आ रहा है, जो पसंद आ रहा है, बढ़िया स्कोरिंग है, अगर उसका वेटेज ज़्यादा है, जैसे मेडिसिन आपको अगर मान लो बहुत पसंद है ना, अगर मेडिसिन बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो अच्छी बात है यार। मेडिसिन बहुत ज़्यादा पसंद है तो बढ़िया बात है, मेडिसिन से तो सवाल भी भर भर के आते हैं। तो उस पर फोकस करो आप, लाइक मेक इट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। इन 4 जो सब्जेक्ट थे ना, इन 4 में से पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन और ओबीजी, इनमें से एक को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ, एक को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लो, एक को तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ माय एडवाइस। नेक्स्ट इज़ मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है आपका, वो आपने छूटना नहीं चाहिए। जैसे साइकेट्री है, शॉर्ट सब्जेक्ट्स में डर्मा है, शॉर्ट सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर आता है। एफएमटी है ना, शॉर्ट सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इनको नहीं छोड़ना है, इनको रिवाइज भी फटफट करना है और अच्छे से करना है। लीस्ट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है, जैसे मेडिसिन भी बहुत लोग बोलते हैं लीस्ट स्कोरिंग है, मतलब जितना टाइम लगता है ना मेडिसिन पढ़ने में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो लीस्ट स्कोरिंग तो आई थिंक ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी, लीस्ट स्कोरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन जिनमें ज़्यादा पढ़ के कम नंबर आते हैं, है ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा फंसना नहीं है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, उनमें थ्योरी में बहुत नहीं फंसना है ना। थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, थ्योरी ही नहीं पढ़ते रह जाना है 3 महीने, क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने हैं। लीस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं, जिनका वेटेज बहुत कम है, छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे एनेस्थीसिया वगैरह है, तो आप उनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, सब कुछ मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, क्वेश्चंस लगाओ, आरआर कर लो, बेस्ट है आरआर कर लो। ऐसे लीस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स के लिए आरआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है वो सब्जेक्ट, स्टिल आरआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दैट्स व्हाट आई डिड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स में, जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत 30 सवाल आते हैं, मेजर सारे जो भी 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से करना है, उनको नहीं छोड़ना है, उनका आरआर भी देख लो, क्वेश्चन भी देख लो, उनमें पीवाईटीज़ पे फोकस करो, क्योंकि बड़े सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ कवर नहीं होगा, सब कुछ याद नहीं होगा, सब कुछ एग्ज़ाम में भी याद नहीं आएगा। फोकस ऑन पीवाईटीज़ इन मोस्ट वेटेज क्वेश्चंस, क्योंकि पीवाईटीज़ बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं।
और एक और चीज़ है, रेडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे से हो जाते हैं, इंटरेस्ट भी आता है, MRI, एक्सरे, CT वगैरह अच्छे से आता है तो हो जाता है। तो रेडियोलॉजी को ऐसा ये मत सोचो मैं हो जाएगा टाइप, फोकस ऑन रेडियोलॉजी। अगर पसंद नहीं भी है ना तो थोड़ा टाइम लगा के रेडियोलॉजी कर लो। ज़ैनब मैम है, ज़ैनब मैम तो बेस्ट हैं ही, सब कोई पता होगा ज़ैनब मैम का, तो इंटीग्रेटेड भी कराते हैं वो बाकी सब। रेडियोलॉजी यार इवन मैरो की मैंने करी थी, मैरो की भी रेडियोलॉजी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो पसंद आई थी। बाकी मैंने प्रेप और किसी चीज़ का तो देखा नहीं है, लेकिन रेडियोलॉजी मुझे मैरो की पसंद आई थी। तो आप रेडियोलॉजी करो, लेकिन जहाँ से भी करो, जैसे भी करो करो। सो दिस इज़ ऑल आई नीड टू टेल यू, कि ये आपका शॉर्ट में है बुलेट पॉइंट्स कि क्या करना है नहीं करना है। अगेन आई विल से, स्ट्रेस मत लो, 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा मत सोचो। 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है वो PG वाला होता है, PG टाइम में स्ट्रेस लेना। FMG टाइम में 300 टॉपिक का स्ट्रेस लो कि कैसे फ़िल्टर आउट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और if I come up with something new, if I think you need something, some important topics for your December FMG 2024, I'll be uploading those in some time. Thank you so much for watching.